خوش ہیں؟ Praise God. کتنے جو خوش ہیں اپنے ہاتھ دکھائیں گے. Hallelujah. Praise God. ہم خوش ہیں کیونکہ ہم پر یہ فضل ہوا ہے. آمین. تاکہ اس کی بارگاہ میں اس کی حضوری میں جو ہے ہم داخل ہو سکیں. ہاللیلویہ. ہم اس کے جلال کی زور کا طالب ہیں. جب ہم کی شکرگزاری کرتے ہیں ساری آمد سارا جلال جو ہے وہ ہم خدا ان کے نام کو دیں گے. تو ٹاپک سب کو یاد ہے کتنے ہیں ٹاپک یاد ہے؟ کیا ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ The truth will set you free. آمین. سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. ہاللیلویہ. ہم خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہوئے خدا ان کی خدا کے پاک کلام میں آگے بڑھیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم خدا ان کے پاک کلام کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اسے ہم اس کے لیے برکت کی دعا چاہیں گے. جیسے گاڈ بلیس یو بولیں، جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے بہن یا بھائی، آپ اسے دوسرے کو گاڈ بلیس یو بولیں. پریز گاڈ. میرے ساتھ بولیے گا، خداوند مجھے سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عطا فرما. آمین. آمین. خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں. خدا ان کے پاک کلام میں سے جو سیریز چل رہی ہے یہ اس کا آج 5واں ایپیسوڈ ہے. آمین. آمین. 4 یاد ہے پہلے پڑھے ہماری مین ورڈز کیا ہیں یاد ہے؟ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آمین. آمین. جب ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی جو ہے ہمیں آزاد کرتی ہے. اور ہم آلموسٹ لاسٹ 4 ویکس سے جو ہے وہ خدا ان کے پاک کلام کے مطابق سچائی کو جان رہے ہیں ملک عراق کے مطابق. آمین. سو عراق جس کا ریئل نیم کیا ہے؟ ملک سنا. آمین. بائبل کے اندر ہمیں اس کا جو نام ہوتا ہے بیبلون یا ملک بابل. آمین. جو پریزنٹ ٹائم کے اندر ہم کس طرح سے جانتے ہیں؟ عراق کے نام سے. آج میں زیادہ نہیں ریکیپ کروں گا، تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. آمین. تھوڑا سا ریمائنڈ دے رہا ہوں تاکہ آپ ساتھ جڑے رہیں، ہر سٹوری جو آپ سب کو پتا ہو. آمین. آمین. ملک عراق ہم سب جانتے ہیں جو کہ مڈل ایسٹ کا پارٹ ہے، اور عراق ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند نے باغ عدن جو ہے وہ وہاں پر لگا ہے. آمین. جسے 4 ندیاں کیا کرتی تھی؟ سیراب کرتی تھی. آمین. آمین. اور پھر خداوند نے جب آدم کے گناہ کے باعث زمین کیا ہوئی؟ لانتی ہوئی. تو خدا نے اس عدن کو، جس کا ٹائم فریم جو نہیں دیکھتے خدا نے کب اٹھا لیا، لیکن خداوند نے اس سرزمین سے کیا کیا؟ باغ عدن کو اٹھا لیا. آمین. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب بنی نوع انسان کا گناہ زمین پر اتنا بڑھ جاتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ زمین کو پانی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے. اس طوفان کے بعد ایک نسل، ایک جنریشن جسے مرد خدا نوح کی جنریشن کے نام سے جانا جاتا ہے. آمین. اس کی بیوی اور مرد خدا نوح جو ہے وہ بچایا جاتا ہے. اور پھر اس کے 3 بیٹے ہم دیکھتے ہیں جس میں سے ہم نے سیکھا تھا، کسی کو یاد ہے کس کے متعلق سیکھا تھا؟ حام کے متعلق. آمین. So that generation was under the curse. حام کی نسل جو ہے وہ چونکہ کرس کے اندر تھی، اور جب زمین پر دوبارہ سے خشکی ہوتی ہے، زمین جو ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے، تو حام کی نسل جو ہے جو انڈر دا کرس تھی، جو لعنت کے اندر تھی، اپنے باپ کی، وہ کہاں پر پہنچتی ہے؟ ملک سنار میں. آمین. یا آج کے پریزنٹ عراق کے اندر. تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پلان کیا کہ آؤ ہم اس جگہ پر کیا کریں، ایک شہر بنائیں.
आमीन। एक अपने लिए एक शहर बनाए और दूसरा काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी जो है वो आसमान तक जाए। आमीन। बुर्ज बनाना चाहते थे इसलिए ताकि उसकी चोटी आसमान तक जाए और ताकि उनका नाम हो। आमीन। और जब हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा था कि बुर्ज की चोटी जो वो चाहते थे आसमान तक जाए, उसकी वजह हमारा नाम ऊंचा। नो, without way he want to reach in the presence of Lord. आमीन। वो खुदावंद यीशु मसीह के बगैर, जैसा हम आज के दौर के अंदर साइंस को जब देखते हैं तो आज साइंस भी इतनी तरक्की कर चुकी है, वो मानती नहीं है तो खुदा कोई है। वो अपने में बहुत फास्ट ट्रेन जेट के साथ जो है वो आसमान तक खुदावंद की हुजूरी में पहुंचना चाहते हैं। और यही हाम की नस्ल चाहती थी कि हम वहां पर एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी जो है वो कहां तक जाए, आसमान तक जाए। आमीन। और मैंने आपको बताया था खुदावंद के पाक कलाम में खुदा का बंदा यशायाह फरमाता है कि आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है। आमीन। और वो कहां पर जाना चाहते हैं? खुदावंद की हुजूरी में, विदाउट क्राइस्ट, जो कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। आमीन। लेकिन वो क्या कोशिश कर रहे हैं? क्राइस्ट के बगैर वे को छोड़ के अपने वे से आसमान तक जाना चाह रहे हैं। आमीन। जो शहर उन्होंने वहां पर बनाया बेबीलोन के अंदर या इराक के अंदर, वो चाहते थे कि हमारा नाम हो, जिसके लिए खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि आसमान और जमीन तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है, जिसके आगे हर एक घुटना क्या करेगा? झुकेगा। आसमानियों का होगा, जमीनियों का होगा। आमीन। आमीन। सो वो जनरेशन जो कर्स के अंदर थी, प्रॉपर वे को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के बगैर वापस खुदावंद अपने खुदा की हुजूरी में आसमान तक जो है वो जाना चाहते थे, जहां से इंसान गिराया गया। आमीन। और अपना नाम चाहते थे, लेकिन कलाम बताता है कि कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम, और वो नाम यीशु नाम है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा। आमीन। जो फर्स्ट रीजन हमने देखी इराक की तबाही की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बज़ाहिर हमें लगता है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं, वो चाहे इराक है, चाहे इथियोपिया है, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो कूश है, कोई भी कंट्रीज है, ये तमाम तर बज़ाहिर हमें नजर आती हैं कि ये अपनी वॉर के बायस जो एक तवील अरसे से, लॉन्ग टाइम से जो है वो वॉर जो है वो वहां पर उन कंट्रीज के अंदर हो रही है, या फिर उनकी करप्शन के बायस इन कंट्रीज की ये इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन है, ये सिनेरियो है, जबकि खुदावंद का हाथ उनके खिलाफ है। आमीन। आमीन। इसलिए जो हमारा टॉपिक है वो है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। टू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आमीन। सो लास्ट हमने देखा था दो चीजें। पहली बात कि जनरेशन कौन सी है? अंडर द कर्स, लानत के अंदर। और जब ये वहां पर जाकर बसे तो खुदावंद का हाथ ऑटोमेटिकली इन नस्लों के खिलाफ, इस जनरेशन के खिलाफ जो है वो हो गया। दूसरी बात जो हमने सीखी थी, किसी को याद है जी? खुदावंद के घर का इंतकाम हमने देखा था बुक ऑफ जरमाया में से, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 51 वर्स 11। मैं चाहूंगा हम दूसरी सेकंड वर्स को दोबारा से पढ़ेंगे इसी रेफरेंस को। यिर्मयाह नबी का सहीफा, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 51 वर्स 11। इस रेफरेंस को खोज रखिएगा, क्योंकि ये हमारा विशालती टॉपिक जब नहीं चल रहा बल्कि हम स्टडी कर रहे हैं, तो इन्हीं को कंटिन्यू हम रखेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा 51 बाब उसकी 11 है, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 51 वर्स 11। जी कोई भी ऊंची बात करती पढ़ सकता है, आपने निकाला है। तीरों को तस्लीम करो,
बादशाहों की रूह को उभारा है, क्योंकि उसका इरादा बाबिल को यूनेस करने का है, क्योंकि ये खुदावन का यानी उसकी हैकल का इंतकाम है। आमीन। दूसरी रीजन जो मैंने आपको बताई थी, चूंकि बज़ाहिर हमें नजर आता है कि ये तमाम तर जो कंट्रीज हैं जिनमें इराक है, सीरिया है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ये तमाम तर मुल्क हमें लगते ऐसे हैं कि शायद वॉर के बायस हैं, लेकिन एक्चुअल में खुदावंद का हाथ इनके खिलाफ बढ़ा है। आमीन। और उसकी रीजन, पहली रीजन क्या है कि they were under the curse, that generation was under the curse, क्योंकि वो मर्दे खुदा नूह की लानत के अंदर थे। और दूसरी बात, खुदावंद जो है वो अपने घर की या अपने हैकल की जो बर्बादी है, जो इराकियों ने की, नबूकदनेस्सर ने की, आमीन। सो खुदावंद जो है वो अपने घर का क्या करता है, बर्बादी का इंतकाम लेता है। आमीन, आमीन। और यही लास्ट मैंने आपको बताई थी कि आज जब आप चर्च को देखते हैं तो आज के टाइम के अंदर चर्च जो है वो बहुत जो है वो टफ सर्कमस्टेंसेस में से गुजर रहा है। आमीन। चर्च को जो है वो हर जगह पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि आज यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे नाम के बायस तुमसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अदावत रखेंगे। वो सारी परसिक्यूशन, उसके बावजूद तमाम तर परसिक्यूशन जो है वो चर्च क्वाइटली फेस कर रहा है या बियर कर रहा है। उसकी वजह, क्योंकि उसकी वजह हम खुदावंद के पाक कलाम में से लास्ट में आपको बताया था, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 जब लिखता है तो वर्स 19 के अंदर कहता है कि आए अजीजों अपना इंतकाम ना दो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं नहीं लूंगा। आमीन। सो चर्च जो है आज अगर ये परसिक्यूशन को फेस कर रहा है, वो किसी भी मुल्क के अंदर हो, आज आप देख बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एज क्रिश्चियन जो है या चर्च जो है या कलीसिया जो है वो बहुत सारी परसिक्यूशन को फेस कर रही है। क्यों? कोई आगे से अप्लाई नहीं करते। उसकी वजह यह नहीं है कि वो क्रिश्चियन जो है या मसीही जो है वो डरपोक है या वो डरते हैं। उसकी वजह यह है कि मसीही जानते हैं कि बदला लेना या इंतकाम लेना हमारा काम नहीं, बल्कि किसका काम है? खुदावंद का काम है। और हमारा इंतकाम जो है या हमारा बदला जो है वो खुदावंद लेगा। आमीन, आमीन। तो आज जब हम इराक को या ईरान को, इन कंट्रीज को देखते तो हमें आज के टाइम के अंदर हमें नजर क्या आता है? बज़ाहिर क्या नजर आता है? कौन बर्बाद कर रहा है जी? अमेरिका। बज़ाहिर हमें नजर आता है कि अमेरिका जो है या इस्राइल जो है वो इन कंट्रीज को बर्बाद करना चाहते हैं। आमीन। आज प्रेजेंट टाइम के अंदर में क्या यही सिनेरियो नजर आ रहा है ना? प्रेजेंट टाइम के अंदर जब आप देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे इन कंट्रीज को, जैसे अभी प्रेजेंट वॉर जो चल रही है ईरान और अमेरिका की, आमीन। सो प्रेजेंट हमें नजर यही आता है कि अमेरिका और इस्राइल जो है वो मिलकर इन कंट्रीज को जो है वो तबाह करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है बुक ऑफ जरमाया के अंदर कि खुदावंद जो है वो अपने घर की बर्बादी का इंतकाम जो है वो क्या कर रहा है? उनसे ले रहा है। मेरे अजीजों, जब हम इस रेफरेंस को देखते हैं तो सिर्फ ये रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही रेफरेंस नहीं है, यही पर खुदा जरमाया में लिख दिया। आइए मेरे साथ एक और रेफरेंस देखिएगा, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 51 वर्स 1 to 5। यिर्मयाह नबी का सहीफा, चूंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये हमारा एपिसोड जो चल रहे हैं ये स्टडी है, हम स्टडी लेंगे क्योंकि बशारती कलाम नहीं है। जरमाया चैप्टर 51 वर्स 1 to 5, यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 51 बाब, उसकी पहली 5 आयत। अगर आपने निकाल दिया तो आमीन कहिएगा। मैं चाहूंगा दूसरा भी रेफरेंस प्लीज निकाल दीजिएगा साथ। सेम चैप्टर है, वर्स 12 to 14। हम 2 आयत हम आगे पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 51 बाब, उसकी पहली 5 आयत। जस्ट एक जगह पर नहीं लिखा गया, बल्कि
متعدد بار جو ہے وہ خدا اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں بابل پر اور اس مخالف دارالسلطنت کے رہنے والوں پر ایک مہلک ہوا چلاؤں گا، اور میں اسانے والوں کو بابل میں بھیجوں گا کہ اسے اسائیں اور اس کی سرزمین کو خالی کریں. یقیناً اس کے مصیبت کے دن وہ اس کے دشمن بن کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے. اس کی کمانداروں اور سرپوشوں پر تیر اندازی کرو، تم اس کے جوانوں پر رحم نہ کرو. اس کے تمام لشکر کو بالکل ہلاک کرو. مقتول کسیدیوں کی سرزمین میں کریں گے اور چھیدے ہوئے اس کے بازاروں میں پڑے رہیں گے، کیونکہ اسرائیل اور یہودا کو ان کے خدا رب الافواج نے ترک نہیں کیا، اگرچہ ان کا ملک اسرائیل کے قدوس کی نافرمان برداری سے پر ہے. آمین. اب یہاں پر خدا جو ہے، خدا خود ڈکلیئر کر رہا ہے. یرمیا کے تھرو خدا جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، کہ دیکھ میں بابل پر اور اس کے مخالف دارالسلطنت کے رہنے والوں پر ایک مہلک ہوا چلاؤں گا. آمین. آمین. پھر آگے ہم جب دیکھتے ہیں سیم چیپٹر اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں گے، 12ویں سے 14ویں آیت. یرمیا نبی کا صحیفہ اس کا 51 باب اس کی 12ویں سے 14ویں آیت، ورس چیپٹر 51 ورس 12 till 14. جی کسی نے نکالا تو آپ پڑھ سکتے ہیں پلیز. بابل کی دیواروں کے مقابلے ڈنڈا کھڑا کرو، پہرے کی چوکیاں مضبوط کرو، پہرے داروں کو بٹھاؤ، زمین کا انتظار کرو کہ خداوند نے ایسے بابل کے حق میں جو کچھ ٹھہرایا اور فرمایا تھا سو پورا کیا. اے نہروں کا سنت کرنے والی، اس کے خزانے پروان ہیں، تیری تمام تمامی کا وقت آ پہنچا اور تیری غارت کری کا پیمانہ دور ہو گیا. رب الافواج نے اپنی رب الافواج نے جی رب الافواج نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، یقیناً میں تجھ میں لوگوں کو ٹڈیوں کی طرح بھر دوں گا اور وہ تجھ پر جنگ کا نعرہ ماریں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں فوجوں کو کیا کروں گا، ٹڈیوں کی مانند تجھ پر چڑھا لاؤں گا. آمین. صبح ظاہر یہ سیناریو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگ کے باعث، لانگ ٹائم وار کے باعث جو ہے ان کنٹریز کی یہ سچویشن ہے، لیکن ایکچوئل میں انگیز کون ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم. آمین. خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم کہ یہ ملک جو ہے یہ یقیناً کیا کروں گے، یہ ملک تباہ ہوں گے، یہ ملک کیا ہوں گے، غالب ہوں گے. اسی ریفرنس کو ہم کنٹینیو دیکھیں گے. جرمیہ چیپٹر 51 ورس 24 to 26. یرمیا نبی کا صحیفہ اس کا 51 باب اس کی 24ویں اور 26ویں دو آیات ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں گے. یرمیا نبی کا صحیفہ 51 باب 24ویں آیت سے 26ویں آیت تک. جی اگر کسی نے نکال دیا تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. میں پڑھتا ہوں. بھائی جب آپ پنجابی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. پنجابی بائبل نہیں ہے میرے پاس، چلے آپ نکالیں، نیکسٹ پڑھ سکتے ہیں. یرمیا اس کا 51 باب 24 میں ایسے میں پڑھوں گا. اور میں بابل کو اور کسب ستان کے سب باشندوں اور اس تمام نقصان کا جو انہوں نے سیہون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پہنچایا ہے عوض دیتا ہوں، خداوند فرماتا ہے. آمین. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے. یہاں پر ہم اس ورس کے اندر دیکھتے ہیں بابل کو اور کسبستان کو. بابل یا جسے ہم آج کے دور کے اندر عراق کہتے ہیں، اس کے شہریوں کو یا اس کے ملک کے باشندوں کو، جس طرح سے ہم مالٹا کے اندر رہتے ہیں، مالٹا کے اندر جو رہنے والے لوگوں ہم کیا کہتے ہیں؟ مالٹیز. جو امریکہ میں رہتے ہیں امریکنز. اب ان کے لیے، عراقیوں کے لیے جو بائبل کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے
وہ ہے कसदिस्तान या कसीदियों का मुल्क भी कहा गया है। आमीन। खुदा यहाँ पर फरमाता है कि कसदिस्तान के सब बाशिंदों को उस तमाम नुकसान का जो उन्होंने सहून को तुम्हारी आंखों के सामने पहुंचाया है इवज देता हूं, खुदावंद फरमाता है। आमीन आमीन। जब नबूकदनेस्सर बादशाह जो है अपनी फौजों को इस्राएल में लेकर गया, पास के केनान के अंदर, प्रेजेंट इस्राएल के अंदर, वहां पर उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने सबसे पहला काम उसने हैकल को जलाया। दूसरा काम उसने क्या किया? बादशाह के कसर को आग लगाई और फिर तमाम बड़े शहरों को। अब यहां पर किस शहर का जिक्र आया? किस शहर का जिक्र आया? पढ़िया जिक्र नहीं पढ़िया मेरे नाम जी ना लीजिए ना, लगता सुनते पे पढ़ते पे। बाकी तो लास्ट आप अपनी वर्स 24 को पढ़िएगा। खुदा में यूं लिखा है, और मैं बाबल को और कसदिस्तान के सब बाशिंदों को उस तमाम नुकसान का जो उन्होंने से उनको तुम्हारी आंखों के सामने पहुंचाया है इवज देता हूं। आमीन आमीन। प्लीज स्टॉप। थैंक यू। किसके इवज देता हूं? सहून, सहून सिटी जिसे हम ज़ायोन के नाम से भी जानते हैं। सहून सिटी, और सहून सिटी पता है किसकी है? दाऊद बादशाह की। आमीन। जहां पर दाऊद बादशाह जो है वो रहता था, उन्होंने उस सिटी को भी जलाया। अब खुदा क्या कहता है कि मैं कसदिस्तान को क्या करूंगा? उस सिटी को, जिस सहून की सिटी को, उसके इवज जिन्होंने ये सहून को जलाया, मैं क्या करूंगा? नुकसान दूंगा। आ गई समझ? बाकी है। आमीन। प्रेज गॉड। ना लेना चाहिए। वो कहते हैं कि सहून को चूंकि उन्होंने नुकसान दिया, सहून को उन्होंने क्या किया? जला दिया। इसलिए सहून के इवज मैं क्या करूंगा? तबाह कर दूंगा, मैं गारत करूंगा। कौन फरमाता है? रब्बुल फौज फरमाता है। देख, खुदा फरमाता है, आए हलाक करने वाले पहाड़ जो तमाम रोई जमीन को हलाक करता है, मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैं अपना हाथ तुझ पर बढ़ाऊंगा और चट्टानों पर से तुझे लुढ़काऊंगा। आमीन। कौन फरमाता है? रब्बुल फौज फरमाता है कि देख, मैं तेरा मुखालिफ हूं। आगे ऐसा देखिएगा, वर्स 29, सेम चैप्टर 29 जी, कोई भी पढ़ सकता है। वर्स 29 को भी पढ़ सकता है। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਜੋਜਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਭਈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵਸੇ। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम के वर्स 29 के अंदर खुदावंद के कलाम में खुदा का बंदा यिर्मयाह जो है वो खुदा के पाक रूह की तहरीक से लिखता है, और जमीन कांपती और दर्द में क्या है? मुब्तला है, क्योंकि खुदावंद के इरादे बाबल के मुखालिफ में कायम रहेंगे। बाबल की सरजमीन को वीरान और गैर आबाद कर दे। आमीन। ये किसके इरादे हैं? किसके इरादे हैं? अमेरिकन के? इजराइलियों के? किसके इरादे? खुदावंद के। क्यों? इसलिए खुदावंद के पाक कलाम में सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बज़ाहिर हमें लगता है कि ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है, बज़ाहिर हमें लगता है कि ये सब कुछ जो है इस्राइल करवा रहा है, लेकिन एक्चुअल में किसका हाथ उनके खिलाफ पड़ा हुआ है? खुदावंद का। आमीन आमीन। आइए हम इसी रेफरेंस को कंटिन्यू देखेंगे, वर्स 33 से 37, सेम चैप्टर। यिर्मयाह 51 बाब उसकी 33वीं आयत से 37वीं आयत। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦੀ ਧੀ
ਧੀ ਪੀੜ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਣਾ ਭਾਂਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਹੜਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਆਖੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਖੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਕਸਦੀਆਂ वालियां वासियां उत्ते होवे। आमीन। आमीन। दोबारा से पढ़ूंगा उर्दू में। भाई साहब थैंक यू वेरी मच। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि रब्बुल फाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि दुख्तरे बाबुल खलियान की मानद जब उसे रोंदने का वक्त आए, थोड़ी देर है कि उसकी कटाई का वक्त आ पहुंचेगा। शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने मुझे खा लिया। आमीन। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया था कि नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो जब जाकर इस्राएल को क्या करता है, खुदा के घर को तबाह करता है, उसे बर्बाद करता है, और वहां से जितने वहां पर हैकल के अंदर सोने के चांदी के जो ज़रूफ होते हैं उन्हें क्या करता है, अपने कब्जे में अपने साथ बाबुल ले आता है, इराक में ले आता है। आमीन। तो इसी तरह से जितना भी जो कुछ वहां पर अच्छा होता है वो सब कुछ वहां से उठा कर ले आता है। इसलिए खुदा के पाक कलाम में खुदा फरमाता है कि शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने मुझे क्या किया है, खा लिया है। उसने मुझे शिकस्त दी, उसने मुझे खाली बर्तन की मानद किया कर दिया, अज़दहा की मानद वो मुझे निगल गया। उसने अपने पेट को मेरी नेमतों से भर लिया, उसने मुझे निकाल दिया। सहून के रहने वाले कहेंगे, जो सितम हम पर और हमारे लोगों पर हुआ, बाबुल पर हो, और यरूशलेम कहेगा, मेरा खून अहले कसदिस्तान पर हो। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं तेरी हमायत करूंगा और तेरा इंतकाम लूंगा और उसके बहरों को सुखाऊंगा और उसके सोते खुशक कर दूंगा और बाबुल खंडर हो जाएगा, गीदड़ों का मकाम और हैरत और संस्कार का बायस होगा और उसमें कोई ना बसेगा। आमीन। 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 जब मैंने शुरू में इस टॉपिक को शुरू किया था तो इन्होंने जो हाम की नस्ल है, इन्होंने क्या प्लान किया था कि हम अपने लिए एक शहर बनाएं जिसमें हम क्या करें, बसे। आमीन। अब यहां पर खुदा कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं इस सरजमीन को खुश्क कर दूंगा। आमीन। यहां पर पानी का कोई सोता ना रहेगा। आपको जो लास्ट मैंने इमेजेस दिखाए थे, किसी को याद है उन 4 रिवर्स के, वहां पर जाकर क्या है, पानी है, सेम ड्राइनेस है, वहां पर बिल्कुल सूखा हुआ है। जो बात आज हम प्रेजेंट के अंदर देखते हैं, वो बात हम खुदा के कलाम के अंदर आज से पहले जो यिर्मयाह नबी है, वो कितने हजारों साल पहले इस बात की पेशनगोई कर चुका है कि मैं क्या करूंगा, उसके सोतों को क्या करूंगा, खुश्क कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मेरे लोगों पर सितम किया है, मेरे लोगों को क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। आगे हम देखेंगे इसी रेफरेंस को सेम 55 वर्स 44 से 51 वर्स 44 एंड 45 सेम चैप्टर 51 बाब उसकी 44वीं और 45वीं आयत। क्योंकि मैं बाबुल में वो निकल गया है
उसके मुंह से निकालूंगा और फिर कौमें उसकी तरफ रवान ना होंगी। हाँ, बाबल की फसील गिर जाएगी। ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और तुम में से हर एक खुदावंद के कहरे शदीद से अपनी जान बचाए। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं बाबुल में बैल को क्या करूंगा, सजा दूंगा, और जो कुछ वो निकल गया है उसके मुंह से निकालूंगा, और फिर कौमें उसकी तरफ रवाना ना होंगी। आमीन आमीन। अब खुदावंद क्या फरमाता है कि मैं क्या करूंगा, बैल को क्या करूंगा, सजा दूंगा। बैल किस चीज की अलामत है जी? आमीन। बैल जो है जोर को या ताकत को शो करता है। आमीन। जब किसी जगह पर पास के अंदर, आज के टाइम तो आपके पास बहुत सारी जो मशीनरीज है, पास्ट में लोग जब खेती का काम करते थे तो वो किस चीज को यूज करते थे, बैलों को यूज करते थे। आमीन। ताकि उनकी पैदावार जो है वो बढ़े। इसी तरह से जब लोग जो है, जैसा मैंने कहा कि आज के दौर के अंदर हमारे पास बहुत सारी मशीनरीज हैं, आज मशीनरी को यूज करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह चीजों को मूव करने के लिए भी बैलों का या हाथियों का इस्तेमाल किया करते थे। आमीन। अब यहाँ पर खुदा जो है कहता है कि मैं क्या करूंगा, बैल को सजा दूंगा। उस टाइम में चूंकि इराक जो है या बाबुल जो है, इट वाज सो स्ट्रांग। जैसा आज के दौर के अंदर आपको बहुत सारी स्ट्रांग कंट्रीज के अंदर सिटीज जो नजर आती हैं, सेम उसी तरह से बाबुल जो है वो बड़ा स्ट्रांग था। आज के टाइम के अंदर यूएस के अंदर आपको एक बहुत बड़ा नाम मिलता है, न्यूयॉर्क सिटी। आमीन। न्यूयॉर्क सिटी सेम इसी तरह से एक टाइम के अंदर बाबुल जो है वो उसी तरह का नाम रखता था और उसी तरह का बिजनेस जो है वो वहां पर पाया जाता था। आमीन आमीन। हांगकांग सब जानते हैं, हांगकांग को, हांगकांग की हिस्ट्री का पता है? किसी को पता हांगकांग की हिस्ट्री? हांगकांग 100 साल के लिए, 100 इयर्स के लिए चाइना से यूके ने जो है वो लीज पर लिया था। हांगकांग जो है वो 100 साल के लिए, 100 इयर्स के लिए चाइना से, चूंकि हांगकांग जो है वो चाइना का पार्ट है, हांगकांग को ब्रिटिश ने या ब्रिटेन ने क्या किया, लीज पर लिया, ताकि वहां पर वो उसे 100 साल के लिए उस जगह को, उस लैंड को यूज कर सके। उन्होंने वहां पर जो है वो बिजनेस अंपायर जो है वो बनाया। और जब आप हांगकांग के मुताबिक, मैंने आपको बताया था, आई वाज इन 1997, हांगकांग में आपको शिकायत देखने के लिए गर्दन ऐसे ऊपर करनी पड़ती है, क्योंकि बिल्डिंग वहां पर बहुत ऊंची है। आपको 90 दर्जे का जाविये पे जाकर आसमान को देखना पड़ता है, तो इतनी ऊंची बिल्डिंग है वहां पर। ब्रिटेन ने वहां पर समंदर के अंदर जब ट्रेन चलाई हुई है, और जब उनका वहां से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाइना के साथ से 100 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो ब्रिटेन जो है वो चाह रहा था कि वो तमाम तर जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस लॉबी थी, वो कहां पर मूव करें, और उन्हें जो है वो ऐसा एरिया, खासकर क्योंकि बिजनेस लॉबी होती है, उनके बिजनेसेस होते हैं, कंपनियों के बड़े बड़े, उन्होंने पता किस कंट्री को सेलेक्ट किया था जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ? किसी को पता है? नो वन नोस। पाकिस्तान से ग्वादर, आप जानते हैं ग्वादर कंट्री जो है, सॉरी ग्वादर सिटी जो है, क्योंकि वो सारा एरिया जो है ग्वादर सिटी, वो चूंकि वहां पर सी साइड है और बिजनेस के एतबार से वो उनके लिए इट वाज सो सुटेबल। लेकिन चूंकि वहां पर गवर्नमेंट की एग्री ना होने के बायस, क्योंकि गवर्नमेंट वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन जो है वो यहां पर आए,
उन्होंने अपना सारा सेटअप जो है आज के टाइम के अंदर दुबई के अंदर सारे सेटअप को मूव किया। हांगकांग में खत्म होने के बाद उसकी वजह यही है क्योंकि दुबई का नाम तभी अरूज पर आया जब वहां पर जितने भी बिजनेस एम्पायर थे वो सारा हांगकांग से दुबई में मूव हुआ। और आज आप दुबई के नाम से वाकिफ हैं कि दुबई का क्या नाम है। शायद अगर वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस टाइम मान जाती तो आज के दौर के अंदर शायद ग्वादर उस तरह से, कराची सिटी उस तरह से होता। क्योंकि उस टाइम में आई थिंक इट वाज 1999 समथिंग 94 के अंदर उनका खत्म हुआ था वहां पे कॉन्ट्रैक्ट। और 94 के अंदर ये बात मशहूर थी, अब पंजाब वालों को कराची का पासपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा कराची जाने के लिए पंजाब वालों को। अगर शायद कुछ लोगों ने हिस्ट्री को उस टाइम में देखा हो या जानते हो। तो इसी तरह से बाबुल का नाम था, वहां पर एक बिजनेस एम्पायर था। इसलिए खुदा कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं उस बैल को क्या करूंगा, मैं उस बैल को क्या करूंगा, सजा दूंगा जो ताकत का सरचश्मा है। क्यों? क्योंकि उसने सहून को बर्बाद किया है, उसने मेरे घर को बर्बाद किया है। आगे हमेशा देखिए क्विकली वर्स 60 to 64 सेम चैप्टर। साठवीं आयत से 64वीं आयत तक सेम चैप्टर। और यिर्मयाह ने उन सब आफतों को जो बाबुल पर आने वाली थी एक किताब में कलमबंद किया। आमीन। यानी इन सब बातों को जो बाबुल की बाबत लिखी गई हैं। और यिर्मयाह ने सराया से कहा कि जब तू बाबुल में पहुँचे तो इन सब बातों को पढ़ना और कहना, आए खुदावन, तूने इस जगह की बर्बादी की बाबत फरमाया है कि मैं इसको नेस्त करूँगा, ऐसा कि कोई इसमें ना बसे, ना इंसान ना हैवान, पर हमेशा वीरान रहे। और जब तू इस किताब को पढ़ चुके तो एक पत्थर इससे बांधना और फरात में फेंक देना और कहना, बाबुल इसी तरह डूब जाएगा और उस मुसीबत के सबब से जो मैं उस पर डाल दूंगा फिर ना उठेगा और वो मांदा होंगे। यिर्मयाह की बातें यहाँ तक हैं। आमीन। खुदावंद के कलाम के अंदर हम देखते हैं लिखा है, और यिर्मयाह ने उन सब आफतों को जो बाबुल पर आने वाली थी एक किताब में क्या किया, ये किताब आज आपके पास है। आमीन। इस किताब में क्या किया, यिर्मयाह ने उसे कलमबंद किया। और आगे हम देखते हैं लिखा है कि इन सब बातों को जो बाबुल की बाबत लिखी गई हैं। और यिर्मयाह ने सराया से कहा कि जो तू बाबुल जब तू बाबुल में पहुंचे तो इन सब बातों को पढ़ना और कहना कि आए खुदावंद, तूने इस जगह की बर्बादी की बाबत फरमाया है कि मैं इसको क्या करूंगा, नेस्त करूंगा। कि कोई इसमें ना बसे, ना इंसान ना हैवान, पर हमेशा वीरान रहे। और जब तू इस किताब को पढ़ चुके तो एक पत्थर इससे बांधना और फरात में फेंक देना और कहना, बाबुल इसी तरह डूब जाएगा और उस मुसीबत के सबब से जो उस पर डाल दूंगा फिर ना उठेगा, वो मांदा होंगे। यिर्मयाह की बातें यहां तक है। आमीन। आमीन। अब यहां पर हम देखते हैं कि इससे पहले कि हैकल को जलाया जाता, इससे पहले कि बादशाह का कसर जो है वो बर्बाद किया जाता, इससे पहले कि यरूशलेम के शहरों को आग लगाई जाती, यिर्मयाह जो है वो इन बातों को कलमबंद कर चुका है। और उन लोगों ने क्या किया था, नबूकदनेस्सर ने क्या किया था, हैकल को जलाया, बादशाह के कसर को जलाया, उसने तमाम बड़े शहरों को जलाया और लोगों को क्या किया, लोगों को असीर करके अपने साथ बाबुल ले गया।
اور یرمیہ جو ہے پہلے سے اس بات کی نبوت کرتا ہے، اور جس شخص نے اسیر ہو کر جانا ہے اسے کہتا ہے کہ سایہ جب تو وہاں پر پہنچے تو کیا کرنا، جو کچھ اس میں لکھا ہے تو کیا کرنا، اسے پڑھنا، اور خداوند سے کہنا کہ خداوند تو نے فرمایا تھا کہ تو اس کی کیا کرے گا، بربادی لائے گا، اس جگہ کو برباد کر دے گا، اور جب تو پڑھ چکے تو اس کتاب کو کیا کرنا، کیا کرنا، اس کتاب کو پتھر باندھ کر دریائے فرات میں پھینک دینا، اور کہنا جس طرح سے یہ پتھر ڈوب گیا ہے تو بھی کیا ہوگا، عراق ڈوب جائے گا۔ آمین آمین۔ تو آج ہم اس سارے سینیریو کو، اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہے، یہ سیم خداوند جو ہے وہ پہلے سے ان باتوں کو اپنے نبیوں کے تھرو، اپنے خادموں کے تھرو قلم بند کر چکا ہے۔ آمین۔ پہلی ورس کے اندر میں چاہوں گا ہم واپس جائیں گے جرمیا چیپٹر 1 51 ورس 1 جو ہم نے پڑھی تھی 1 to 5 51 ورس 1 to 5 ہم نے پڑھا تھا، میں چاہوں گا اسے دوبارہ سے پڑھیں گے۔ خداوند یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں بابل پر اور اس مخالف دارالسلطنت کے رہنے والوں پر ایک مہلک ہوا سناؤں گا، اور میں اس آنے والوں کو بابل میں بھیجوں گا کہ اسے اکسائیں اور اس کی سرزمین کو خالی کریں۔ یقیناً اس کی مصیبت کے دن وہ اس کے دشمن بن کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ اس کے کمانداروں اور زرپوشوں پر تیر اندازی کرو، تم اس کے جوانوں پر رحم نہ کرو، اس کے تمام لشکر کو بالکل ہلاک کرو۔ مقتول کشتیوں کی سرزمین میں گریں گے اور چھیدے ہوئے اس کے بازاروں میں پڑے رہیں گے، کیونکہ اسرائیل اور یہودا کو ان کے خداوند رب الفاظ نے ترقی نہیں کیا، اگرچہ اس کی مقابلت اسرائیل کے قدوس کی نافرمان سے پورے ہیں۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا، میں نے دوبارہ ریفرنس میں پڑھوایا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو بات یرمیہ لکھتا ہے، اس کے کمانداروں اور زرپوشوں پر تیر اندازی کرو، تم اس کے جوانوں پر رحم نہ کرو، اس کے تمام لشکر کو بالکل ہلاک کرو، مقتول قدیسیوں کی سرزمین میں گریں گے اور چھیدے ہوئے اس کے بازاروں میں پڑے رہیں گے۔ آمین۔ اب کیا، چونکہ جتنے ہم نے ریفرنس پڑھا 51 کے اندر یہ صرف یرمیہ لکھ رہا ہے، آمین، کیا کسی اور نبی نے جو ہے اس بات کا ذکر کیا؟ یہ صرف تمام ریفرنس جتنے نے پڑھے، یرمیہ نبی جو ہے ایسا لکھ رہا ہے، کسی اور خادم نے، کسی اور نبی نے بھی اس بات کی پیشن گوئی کی؟ یسایہ نبی نے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا، بک آف یسایہ نبی کا صحیفہ چیپٹر 13، یسایہ اس کا 13واں باب، بک آف یسایہ چیپٹر 13 verse 19 and 20۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 13واں باب، اس کی 19ویں اور 20ویں ہے، سیم پیشن گوئی جو ہے، یا سیم ہو بہو ورڈ جو ہے وہ آپ کو یسایہ کے ملیں گے۔ بک آف یسایہ چیپٹر 13 verse 19 till 20۔ جنہیں ہم نے کہا دے اوپر سے دروازہ میں پڑھتا ہوں۔ اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کسبیوں کی بزرگی کی رونق ہے، آمین، جی پڑھتے ہیں۔ سدوم اور امورا کی مانند ہو جائے گا جن کو خدا نے الٹ دیا۔ آمین۔ پلیز سٹاپ کیجئے۔ 19ویں آیت کے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کسبیوں کی بزرگی کی رونق ہے۔ آمین۔ جو بات میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ بابل کا اس ٹائم سٹینڈرڈ کیسا تھا، لائک نیو یارک آج کے ٹائم کے اندر۔ آمین۔ میں نے آپ کو ہانگ کانگ کی ایگزامپل دی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حشمت کیسی ہے، اس کی رونق کیسی ہے۔ جی آگے پڑھیں پلیز۔ وہ ابد تک آباد نہ ہوگا اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا، وہاں ہرگز
अरब खैमे ना लगाएंगे और वहाँ गडरिए गलों को ना बिठाएंगे। आमीन आमीन। सेम बात जो बात जो है, जो पेशन गोई जो है यिर्मयाह करता है, वही पेशन गोई यशायाह करता है। आमीन। और वो कहता है कि ऐ बाबल जो ममलकों की हशमत और कस्तियों की बुजुर्गी की रौनक है, सदूम और अमूरा की मानद हो जाएगा। किसकी मानद? सदूम और अमूरा की सिचुएशन जब तक वाकई है। आमीन। क्या हुआ था? हाँ, वो गंधक वहां पर नाज़िल हुई और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। आगे चलकर जब वो अब तक आबाद ना होगा, वो पुष्ट दर पुष्ट उसमें कोई ना बसेगा, वहां हरगिज अरब खैमे ना लगाएंगे और वहां गडरिए गलों को ना बिठाएंगे। आमीन। सो कंप्लीटली जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। अभी हमें वहां पर कुछ सीधा लोग जहां वो नजर आते हैं, लेकिन जो उसकी रौनक थी, जो उसका एक पास था, वो आपको सिचुएशन आज के टाइम के अंदर नजर नहीं आती। इसे मैं चाहता हूं आज ही खत्म कर दूं, थोड़ा सा रह गया, खत्म कर दूं, इसके अदरवाइज नेक्स्ट एपिसोड लेना पड़ेगा। खत्म कर दूं? आमीन। चर्च, जैसा मैंने पहले कहा कि बज़ाहिर आपको लगता है कि अमेरिका और इस्राइल जो है वो इसकी बर्बादी का सबब है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि जब खुदा ने मादियों के बादशाहों की रूह को उभारा या मादियों के बादशाहों को तैयार किया, तो वहां पर इराक के अंदर उस टाइम पता है कौन था बादशाह? किसी को याद है जी? आए मेरे साथ देखिएगा, बुक ऑफ दानियल नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 पहला 5वां ही है, पहले 5वां है जी, पहला 5वां है, फर्स्ट 5वां। डैनियल चैप्टर 5 वर्स 24 till 31। दानियल नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब, उसकी 24वीं आयत से 31वीं आयत तक। मैं चाहूंगा इसे हम आज खत्म करेंगे। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 5 वर्स 24 to 31। जी क्विकली कोई पढ़ सकता है प्लीज। बस उसकी तरफ से हाथ का वो हिस्सा भेजा गया और ये नविश्ता लिखा गया, और वो नविश्ता ये है, मिले मिले तकीलो फरसी, और उसके मैंने ये है, मिले यानी खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। तकील यानी तू तराजू में तोला गया, कम निकला। फरीस यानी तेरी मुमलकत मुनक़सम हुई और मादियों और फारसियों को दी गई। तब बेलशास्सर ने हुक्म किया और दानियल को अरगवानी खिलन बनाया गया और जरी तौब उसके गले में डाला गया और मनादी कराई गई कि वो मलकत में तीसरे दर्जे का हाकिम हो। उसी रात को बेलशास्सर कसदियों का बादशाह कत्ल हुआ और दारा मादी ने 62 वर्ष की उम्र में उसकी सल्तनत हासिल की। आमीन आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इराक का बादशाह है वो कौन है? बेलशास्सर। आमीन। है तो वो किसने बर्बाद किया? नबूकदनेस्सर ने। लेकिन उस टाइम जब खुदा ने अपने घर की बर्बादी का बदला लिया, उस टाइम में बादशाह कौन है? बेलशास्सर। जो किसका बादशाह है? इराक का, जिसे हम कसीदियों के मुल्क के नाम से जानते हैं। खुदा के पाकलाम के अंदर हमने पढ़ा 31वीं आयत के अंदर, और दारा मादी ने 62 वर्ष की उम्र में उसकी सल्तनत हासिल की। ये पता है इस टाइम क्या हुआ था? दानियल की किताब के अंदर इस रेफरेंस सब आते हैं। कितने दिन याद है? अभी बहन ने पढ़ा, मीने जी किलो तरसी, यानी तेरी सल्तनत खत्म कर देगी, तुझे तेरा हिसाब कर देगा, तो तराजू में तोला गया और कम निकला। बेलशास्सर बादशाह ने पता क्या किया था? व्हाट्स द रीजन? क्या किया था? वजह जानते हैं?
हैकल से जो बर्तन लाए गए थे, हैकल से जो ज़रूफ लाए गए थे, बेलशस्सर बादशाह ने उस समय जब पार्टी अरेंज की तो उन्होंने उन 5 बर्तनों के अंदर मैनोशी की जो खुदावंद को पसंद नहीं आई। इसलिए कलाम करेगा कि वहां पर एक हाथ निकला जिसने दीवार पर हिब्रू के अंदर वो एक तहरीर जो है वो लिखी, जो पहले भी पढ़ी कि तेरा हिसाब कर दिया गया, तो तोला गया और कम निकला। अब यहां पर खुदा किसको इस्तेमाल कर रहा है? दारा, मादियों का बादशाह। आमीन। दारा बादशाह आप कह सकते हैं, दारा मादी लिखा है यहां पर। ये दारा मादी पता कौन है? मादियों का मुल्क पता कौन है? आमीन। आज प्रेजेंट ईरान जो है ये मादियों का या फारसियों का मुल्क है। आमीन। सो दारा बादशाह के थ्रू जो है खुदा काम लेता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप जितने यहां पर हैं आप सब टूल्स हैं। आप में से चाहे कोई पास्टर्स हैं, कोई एवेंजलिस्ट हैं, कोई डीकन्स हैं, कोई वर्शिपर्स हैं, आप सबको खुदा एज टूल जो है वो इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए। आमीन। इसी तरह से खुदा इराक की बर्बादी के लिए उस टाइम अमेरिका को इस्तेमाल नहीं कर रहा, इराक को, अमेरिका को, इसराइल को इस्तेमाल नहीं कर रहा। उस वक्त किसे खुदा इस्तेमाल कर रहा है? मादियों और फारसियों को। उस वक्त खुदा ईरान को जो है वो इराक की तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से जब आप, मैं जस्ट रेफरेंस दूंगा, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, नोट कर लेकर करना हो तो, दानियल चैप्टर 6 वर्स 1 to 28। इसे घर जाकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लंबा रेफरेंस में पढ़ूंगा मैं। दानियल 6 वर्स 1 to 28। तो यहां पर भी आपको जो है वो उसका जिक्र जो है वो मिलता है। मैं इसकी जस्ट पहले कुछ वर्सेस पढ़ूंगा, जस्ट 6 की। लिखा है, दारा को पसंद आया, चैप्टर 6, दानियल चैप्टर 6, दारा को पसंद आया कि ममलकत पर 120 नाज़म मुकर्रर करे जो तमाम ममलकत पर हुकूमत करें और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़म उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। आमीन। अब यहां पर दारा जो मादियों का बादशाह, जो प्रेजेंट ईरान का बादशाह, उसने क्या किया है? इराक के बादशाह बेलशस्सर की सल्तनत को क्या किया है? उलटकर, उसके तख्ता को उलटकर उस पर हुकूमत की, और वहां पर वो क्या करता है? 120 नाज़म मुकर्रर करता है, और वहां पर लिखा है कि 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था। आमीन। आमीन। सो मेरे अजीजों, इस सारे सिनेरियो के अंदर जब आप देखते हैं तो किसका हाथ है? खुदा का हाथ। बज़ाहिर कौन नजर आ रहा है? दारा बादशाह। लेकिन पीछे कौन है? पीछे खुदा उसका मुखालिफ है। चर्च, आप में से कितने हैं जो एक्स प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को जानते हैं? जानते हैं? कौन था? सद्दाम हुसैन कहां का प्रेसिडेंट था? इराक का। सब जानते हैं ना सद्दाम हुसैन को। और सद्दाम हुसैन का ये कहना था कि चूंकि उस टाइम में सद्दाम हुसैन का ये दावा था कि आज का नबूकदनजर मैं, जिस तरह से नबूकदनजर के टाइम में खुदा ने इराक को सरबुलंद किया, खुदा ने बरकत दी, आज मेरे टाइम के अंदर मैंने इराक को सेम उसी तरह उस पोजीशन पर पहुंचा दिया। और उसने ये भी दावा किया कि मैंने मसीहियों की बाइबल के इस सारे दावे को गलत कर दिया। आमीन। लेकिन उस टाइम खुदावंद ने पता किसे इस्तेमाल किया? ये पॉइंट प्लीज डाल जी। यस यस, यू आर राइट। जब सद्दाम हुसैन ने इस बात का दावा किया कि मैंने मसीहियों के कलाम को, मैंने मसीहियों के बाइबल को गलत कर दिया, झूठा साबित कर दिया, इराक आज फिर दोबारा से अपनी सरबुलंदियों पर है, दोबारा से उसी अरूज पर है जिस टाइम के अंदर नबूकदनजर जो था इस मुल्क पर हुकूमत करता था। पूरा ऑलमोस्ट जितना भी एरिया था उस टाइम सब नबूकदनजर से डरते थे और उसकी एक बड़ी हशमत थी। उसे उस टाइम जो अभी भाई ने बताया, उस टाइम खुदा ने बुश को इस्तेमाल किया, प्रेसिडेंट बुश को, और उसके साथ इसराइल को।
आमीन। लास्ट रेफरेंस भी देखेंगे, जस्ट लास्ट करेंगे फिर से खत्म करेंगे, जो एक लंबा एपिसोड था एक और। आइए मेरे साथ देखिएगा, बुक ऑफ जर्माया सेम्स चैप्टर 19, यिर्मयाह नबी का सहीफा, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 51 वर्स 19 to 24। यिर्मयाह नबी का सहीफा 51 बाब 19वीं आयत से 24वें आयत तक। जर्माया चैप्टर 51 वर्स 19 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट रेफरेंस है, इसके बाद खत्म करेंगे। अब ये टॉपिक खत्म हो गया ऑलमोस्ट, आज डन कर दिया, क्योंकि टॉपिक लंबा था, मैंने चाह के भी खत्म कर दिया इसे। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 51 वर्स 19 से पढ़ेंगे जी, कोई भी पढ़ सकता है। उनका बनना उनकी मालिक नहीं, क्योंकि वो सब चीजों का खालिक है और इसराइल उसकी विरासत का आसा है। रब्बुल फाज उसका नाम है। तू मेरी गुजार और जंगी हथियार है। तुझसे मैं कौमों को तोड़ता और तुझी से संतनों को निस्त करता हूँ। तुझी से मैं घोड़ों और सवारों को कुचलता हूँ और तुझी से रथ और उसके सवार को चूर करता हूँ। तुझी से मर्दान और वीर और जवान को कुचलता और तुझी से नौखेज लड़कों और लड़कियों को पीस डालता हूँ। तुझी से चरवाहों और उसकी गल्ला को कुचलता और तुझी से किसान और उसकी जोड़ी बैल को और तुझी से सरदारों और हाकिमों को चूर चूर कर देता हूँ। और मैं बाबिल को और कसदान के सब बशिंदों को और उस तमाम नुकसान का जो उन्होंने सैयोन को तुम्हारी आंखों के सामने पहुंचाया है इब्स देता हूँ। खुदा फरमाता है। आमीन, आमीन। कौन फरमाता है? खुदा फरमाता है। आमीन। सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैंने मसीहियों की बाइबल को जो पेशन गोइयां उसमें जो बातें लिखी हैं झूठा साबित कर दिया। मैंने अराब को दोबारा से उन्हीं सरबलंदियों पर ले आया। पास के अंदर खुदा ने मादियों और फारसियों के थ्रू अराब को जो है वो बर्बाद किया। प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर 1980 का 1998 का दौर था, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, लेट 90s में खुदा ने प्रेसिडेंट बुश को इस्तेमाल किया, इस्राइल को इस्तेमाल किया, जिसके लिए ऑलरेडी पेशगोई हो चुकी है। आज आपको लगता है कि इस्राइल छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम तर कंट्रीज को लीड करता हुआ आपको नजर आता है। उसकी वजह क्योंकि खुदावंद जो है वो फरमाता है। पास के अंदर खुदा ने किसे इस्तेमाल किया अराब की बर्बादी के लिए? मादियों और फारसियों को, ईरान को। आमीन। प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर लेट 90s के अंदर खुदा ऑलरेडी पेशगोई कर चुका है कि याकूब का बकरा उनकी मानद नहीं। याकूब कौन है? याकूब कौन है? इस्राइल। आमीन। याकूब का जो खुदावंद ने नाम दिया इस्राइल, याकूब का बकरा उनकी मानद नहीं, क्योंकि वो सब चीजों का खालिक है और इस्राइल उसकी मिरास का अस्सा है। कौन फरमाता है? रब्बुल फाज उसका नाम है। आमीन, आमीन। अब अस्सा क्या करता है? अस्सा क्या करता है? अस्सा प्रोटेक्ट करता है, अस्सा तोड़ता है। आमीन, आमीन। हम ज़बूर 23 पढ़ते हैं। ज़बूर 23 के अंदर क्या लिखा है? दाऊद कहता है कि तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन। अब यहाँ पर कलाम हम बयान करता है और इस्राइल उसकी मिरास का अस्सा है, रब्बुल फाज उसका नाम है। आमीन। अब अस्सा क्या करता है? वो तोड़ता है, अस्सा प्रोटेक्ट करता है। लिखा है कि तू मेरा गुजर और क्या है? और मेरा क्या है? जंगी हथियार है। 1947 से लेकर आज तक आप इस्राइल की हिस्ट्री चेक कर लें। 1947 में दोबारा से हुआ ना, ये इंडिपेंडेंट हुआ इस्राइल। 47 पाकिस्तान था, पाकिस्तान ही ना 47, क्योंकि हम 47 है वो 48 है। 48 से आप उसकी हिस्ट्री देख लें।
आज तक 48 से लेकर आज तक स्टिल क्या कर रहा है? वॉर के अंदर है, जंग के अंदर है, कभी किसी मुल्क से, कभी किसी मुल्क से, किसी से आज के दिन तक जंग लड़ रहा है, वॉर के अंदर है। और खुदा फरमाता है कि तू मेरा गुजर और मेरा क्या है? जंगी हथियार है। आमीन, आमीन। किसने फरमाया? पादरी साहब ने क्या कहते हो? बाइबल सबके पास है, सबके पास है। जो भाई और पंजाबी का बाइबल करना मैं खरीद नहीं कोई प्लीज ना करियो, सेम ही है। नहीं काट देना तो शाके ना रहे। तू मेरा जंगी हथियार है। कौन फरमाता है? खुदा फरमाता है। आमीन, आमीन। खुदा फरमाता है कि तू मेरा जंगी हथियार है और तुझी से, लिसन वेरी केयरफुल इन वर्सेस को, ये लास्ट वर्सेस है, लिखा है और तुझी से मैं कौमों को तोड़ता और तुझी से सल्तनतों को नेस्त करता हूं। कौन करता है? खुदा करता है। इस्तेमाल किसे कर रहा है? खुदा इस्तेमाल किसे कर रहा है? इस्राएल को। खुदा कहता है कि तुझी से मैं कौमों को तोड़ता और तुझी से सल्तनतों को नेस्त करता हूं, तुझी से मैं घोड़ों और सवारों को कुचलता हूं और तुझी से रथ और उसके सवारों को चूर करता हूं, तुझी से मर्दोजन और पीरो जवान को कुचलता और तुझी से नौखेज लड़कों और लड़कियों को पीस डालता हूं और तुझी से चरवाहे और उसके गल्ला को कुचलता और तुझी से किसान और उसके जोड़ी बैल को और तुझसे सरदारों और हाकिमों को चूर चूर कर देता हूं। मैं बाबल को कसम शैतान के सब बाशिंदों को तमाम उस नुकसान को जो उन्होंने सहून को तुम्हारी आंखों के सामने पहुंचाया है इब्स देता हूं। खुदा फरमाता है। आमीन, आमीन। पास के अंदर खुदा ने बर्बाद किया किनके थ्रू? मादियों और फारसियों के थ्रू। आमीन। दारा बादशाह या फिर साइरस बादशाह का नाम भी आपको मिलता है। फारस बादशाह, ईरान का बादशाह, साइरस बादशाह का जिक्र भी आपको मिलता है। क्योंकि डिफरेंट टाइम्स के अंदर खुदा ने टूल की तरह डिफरेंट बादशाहों को इस्तेमाल किया। क्योंकि बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर खरूज की किताब में लिखा है कि बादशाहों का दिल किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। खुदा फरमाता है कि मैंने क्या किया है? मादियों के बादशाहों की रूह को उभारा है ताकि वो उसे क्या करें? बर्बाद करें। पास के अंदर खुदा ने मादियों को इस्तेमाल किया। प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर, लेट 90s के अंदर खुदा बुश को, अमेरिका को और इसराइल को इस्तेमाल करता है और जिसके लिए खुदा आज से हजारों साल पहले यिर्मयाह के थ्रू डिक्लेयर करवा चुका है कि तू मेरा जंगी हथियार। आमीन। दैट्स द रीजन इसराइल पीस चाहता है, पर इसराइल को ये पता नहीं है कि इसे खुदा इस्तेमाल करता है। खुदा कहता है कि तू मेरा जंगी हथियार है। वो पीस चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है? खुदा इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। तो इसलिए सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। और सच्चाई यही है क्योंकि पाक कलाम के अंदर लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाए तो टल जाए, लेकिन इसमें एक नुक्ता, एक शोशा भी जो है वो तब्दील नहीं हो सकता। जो कुछ इसमें लिखा है वो हर हाल में, हर एक टाइम के अंदर क्या होगा? पूरा होगा। अभी सब अपनी जगह पे खड़े होंगे, सब अपनी जगह पे खड़े हो, सब अपनी जगह पे खड़े हो।